Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the show. I'm your host Riaz Gul. Every Tuesday 6 to 7 p.m. I do the live legal show where I take your live phone calls and share the immigration law and human rights. If you or any of your friend have any legal issue or you want to ask any question, I'm more than welcome. You can call us. But in case your matter is pending in the court or the home office, or unfortunately if you receive any refusal letter or you want any comprehensive or the detailed advice, so I always advise and request to all of my viewers and the client is better either you can send me all the paperwork, let me have to go through and then I will be in a better position to give advice, or you can personally visit the office, then I think it will be a better option to going through all the documents and the evidence and the whatever the claim you have. Then any solicitor or the representative will be in a better position to give the appropriate advice. Before I start the phone calls, I just want to show the government just publish a new policy and update the same policy, but the update and announce on the 1st of November, which is the day before yesterday. Due to the COVID-19, the second lockdown, the government announced the people who are in the UK or their visa going to expire from the 1st November to the 31st of November, they can stay in the UK as far as they notified or inform the home office. This all the people are included, either you are the student or you are on spouse visa or you are even on the visit visa. If you are in the UK on the temporary residency or residence visa, you are entitled to stay up to this lockdown, but you need to establish, first you need to make the application online, you need to inform the online to the home office, and you need to establish one of the category, either you can't travel due to there is not ticket available or the travel issue, or the second, if unfortunately have any symptoms of the COVID-19 or they have a fever or something or any medical condition, still you can apply for the extension. But this is depend whether you are on the temporary visa, or even if anybody on other visa, they also can stay here or without applying the further leave to remain up to this grace period. Last time the government announced during the first lockdown same remedies for all the people. If their visa was expired during the lockdown, they was entitled to stay. But now again on the second lockdown, the government announced the same remedies. But during this time, what the laws say, if anybody during the visa they have a right to work and study and to in special work, they can carry on the same condition as they have in the previously, but they need to inform to the home office, so they can stay up to this lockdown time if until loss not extended. Even if they extend it, then I believe the home office again they review their policy, they will extend the time of the grace period, then depend upon the further notification by the government. Once we receive any further information, we definitely share, but this is most likely is relevant for the people who they are student, temporary work visa or work visa, even the student or the visitor visa or the spouse visa. If you are here from the 1st November or your visa going to be expired, you don't need to worry as far as you make the online applications, provide the document evidence, they will grant you the further leave for this due to the lockdown issues. किसी बंदे को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है अगर उसका वीज़ा एक्सपायर हो रहा है फ्रॉम 1 नवंबर से 30 नवंबर तक, बट आपको एक अनफॉर्चुनेटली आपको थोड़ी सी हसल करनी पड़ेगी. You need to make the application to the home office and which is online and need to be informed कि मेरे पास टिकट अरेंज नहीं हो रहा या मैं ट्रैवल नहीं कर सकता ड्यू टू ABC, और अनफॉर्चुनेटली अगर कोई ऐसे सिम्टम्स हों या मेडिकल कंडीशन हो, तो बेशक आप यहाँ पे स्टूडेंट हैं, विजिटर हैं, स्पाउस वीज़े पे हैं और आपका वीज़ा एक्सपायर हो रहा है, वेदर यू मेक द एप्लीकेशन आपने लीव टू रिमेन अप्लाई करनी है या अपनी कंट्री छोड़ना है, दोनों सूरतों में आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं, आप यहाँ पे स्टे कर सकते हैं विदाउट ड्यूरिंग दिस ग्रेस टाइम. तो लेते हैं आज की फ़र्स्ट कॉल. जी फरमाइए. हेलो.
जी कंट्रोल प्लीज़ थ्रू करें, कॉल का सिलसिला स्टार्ट करते हैं। जी फरमाइए। दयाल से बात करनी है। जी मैडम आप लाइव हैं, बोलने व्हाट्स योर क्वेश्चन। जी दयाल साहब, मुझे आपसे ये बात करनी थी कि मेरा इंडेफिनिट ड्यू है और मुझे अप्लाई करना है। तो राइट मेरे हस्बैंड जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयड डिलीवरी ड्राइवर हैं और वो टैक्स पेइंग है। तो राइट क्या वो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट जो 18,600 है उसमें अपना डिलीवरी ड्राइवर की पे स्लिप दिखा सकते हैं? ठीक। और मेरा दूसरा सवाल ये है कि मैं मैटरनिटी अलाउंस पर हूँ राइट जो कि मुझे गवर्नमेंट पे कर रही है क्योंकि एम्प्लॉयर ने मुझे नहीं दिया बिकॉज ऑफ लेस आवर्स आई वाज वर्किंग। राइट क्या मैं वो भी अपने जो 18,600 रिक्वायरमेंट है उसमें मैटरनिटी अलाउंस शो कर सकती हूँ क्योंकि एम्प्लॉयर की तरफ से तो मुझे पे स्लिप्स भी नहीं आ रही हैं और बिकॉज सवाल एम्प्लॉयर क्या मुझे आपका? नहीं दे रहा, गवर्नमेंट। ओके आप मैडम टीवी पे आंसर सुने, थैंक यू आपकी कॉल का। लेकिन देखिए लॉ कहता है कि अगर आप अपनी फर्स्ट एप्लीकेशन डाल रहे हैं एज ए स्पाउस या एक्सटेंशन अप्लाई कर रहे हैं और द फाइनली इवन यू अप्लाइंग फॉर द इंडेफिनिट लीव टू रिमेन, आपने बाकी तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हुए जो मेनली है वो अपने इनकम थ्रेशोल्ड को मीट करना है। अब आपको सिर्फ एक बात साबित करनी है कि आपकी और आपके हस्बैंड की दोनों की जो जॉइंट इनकम है विच इज़ मीट द क्राइटेरिया ऑफ थ्रेशोल्ड ऑन जो कि 18,600 बनती है। अगर आप दोनों लोग सेम कंपनी में काम कर रहे हो अपनी अपनी कंपनी में और दोनों में काम करते कम से कम मोर देन 6 मंथ हो गए हैं बोथ को, तो आप 6 मंथ की अपनी बैंक स्टेटमेंट पे भी रिलाई कर सकते हो। लेकिन अगर आपने कहा कि आप मटर्निटी लीव पे हैं, अगर आपकी अभी लास्ट 6 मंथ में शॉर्ट बनती है तो पूरे साल पे भी रिलाई कर लें। और दोनों की जो इनकम है, आपके हस्बैंड वो कोई भी काम करते हैं, उनकी अपनी अगर पे आ रही है तो पे स्लिप अकाउंट करेंगे। अगर वो सेल्फ एम्प्लॉई हैं तो फिर उनका लास्ट ईयर का अकाउंट्स जमा होंगे। अब यहाँ पे एक टेक्निकल जो बात है वो अंडरस्टैंड करने वाली है। ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि आपके हस्बैंड फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 से लेके मार्च 2020 की इनकम को रिलाई करें और आप फर्स्ट जो आज नवंबर जा रहा है कि आप 1 दिसंबर 19 से लेके 30 अक्टूबर 2020 करें, तो ये मोर देन 12 मंथ का पीरियड बन जाएगा। आपने जब भी क्लेम करना होगा दोनों ने और दोनों की जो सेम 12 मंथ की जो इनकम है वो काउंट होगी। इसके लिए जो आइडियली मैं सिर्फ एडवाइस कर सकता हूँ वो ये है कि अगर आप एम्प्लॉई हैं तो आप अपनी जो वेजेस स्लिप्स हैं उस पर रिलाई करोगी, और जो आपके हस्बैंड हैं वो लास्ट 12 मंथ के, उनके पास 2 राइट्स हैं कि वो लास्ट 12 मंथ के मैनेजमेंट जो अकाउंट्स हैं उनको बना के जब सबमिट करेंगे तो वो साथ कंफर्मेशन लगा के अकाउंटेंट का लेटर साथ लगाएंगे, तो ये दोनों चीज़ें फिर लास्ट 12 मंथ के अंदर ही कवर होंगी। इसलिए कि सम लोग बेचारे अगर आप ये रिस्क ले लें कि उनका जो सेल्फ एज ए सेल्फ एम्प्लॉय ईयर होगा वो डिफरेंट होगा और आपकी इनकम डिफरेंट साल में आती है, तो फिर वो शायद 12 महीनों में कंसिडर नहीं होगा। तो इसलिए आइडियली मेक श्योर करना कि आप अकाउंट्स और आपकी वेजेस स्लिप्स या सेल्फ एम्प्लॉय दोनों को जो 12 महीने वो सेम होने चाहिए। और साथ ही साथ अपने लाइफ इन यूके टेस्ट पास करना है, B1 करना है और आपने प्रूफ देना है कि वी लिविंग टुगेदर ऑन योर रिलेशनशिप स्टिल इज सबसिस्टिंग, और आपको इंडेफिनिट ग्रांट हो जाएगा। आपकी कॉल का शुक्रिया, लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मेरे भाई सवाल क्या आपका? क्वेश्चन मेरा जी ये मैं ब्रिटिश नेशनल हूँ और राइट मेरी वाइफ का नेक्स्ट ईयर अक्टूबर में उनका इंडेफिनेट मैंने अप्लाई करना है। राइट मैं भी सेल्फ एम्प्लॉय हूँ। मेरे से भी पूछना था कि जब आप इंडेफिनेट अप्लाई करते हो तो उसके लिए कितने अरसे की आपको पेमेंट चाहिए होती है? और मेरे भाई शायद आप फ़ोन पे वेट कर रहे थे, जो बड़ा मैंने इससे पहला सवाल था उसको बड़ा डिटेल से एडवाइस किया है कि अगर आप जब इंडेफिनिट अप्लाई करते हैं, एक्सटेंशन अप्लाई करते हैं या इनिशियल फर्स्ट एप्लीकेशन करते हैं लीव टू रिमेन या इंटर टू द यूके, दोनों कैटेगरीज़ में या तीनों कैटेगरीज़ में आपने ये इस्टेब्लिश करना है कि हस्बैंड की और वाइफ की दोनों की इनकम मिला के 18,600 पाउंड को मीट करते हैं। अब यहाँ पे सवाल क्या आता है कि अगर तो आप सेल्फ एम्प्लॉई हैं, आप अपने अकेले की इनकम पर रिलाई करते हो, तो आपके पास फिर एक ओपन ऑप्शन है कि आप अपने लास्ट ईयर के टैक्स रिटर्न को जमा कराओगे और जो जमा कराए हुए हैं अकाउंट्स उसको लगाओगे तो आपकी एप्लीकेशन प्रूव हो जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आता है?
प्रॉब्लम तब आता है जब अगर एक पार्टनर सेल्फ एम्प्लॉय हो और एक एम्प्लॉय हो, तब अगर ये क्लेम किया जाए कि आपका जो रिटर्न ईयर था वो अप्रैल 18-19 से लेके मार्च 20 था, और अगर मिसिस का लिया जाए वो 1 जनवरी 2020 से लेके दिसंबर 2020 होगा, तो ये आप देखा जाए गौर से तो ये बेसिकली 33 मंथ 21 मंथ बनते हैं। ये 12 मंथ के अंदर का टाइम नहीं आता, ये वो काउंट होते हैं कि फ्रॉम 1 अप्रैल 19 से लेके दिसंबर 2020 तक ये टोटली 21 मंथ बनते हैं। तो आइडियल इन सूरतों में अगर दो डिफरेंट इनकम को जॉइंटली क्लेम करना हो और दोनों का जो सोर्स ऑफ इनकम हो, वन इज़ सेल्फ एम्प्लॉय एंड वन इज़ एम्प्लॉय, तो उस सूरत में एक ही रास्ता बचता है कि जो एम्प्लॉय हो वो अपने लास्ट 12 मंथ के मैनेजमेंट अकाउंट सबमिट कर दे और उनको साथ कंफर्मेशन ले, अकाउंट का लेटर साथ लगाए, बैंक उसमें प्रूफ उसमें पैसे आ रहे हैं। क्योंकि जब भी आप क्लेम करते हो अपनी इनकम को तो आपको ड्यूल जो प्रूफ देने पड़ते हैं। नंबर 1 कि आपका प्रूफ ऑफ इनकम, प्रूफ ऑफ इनकम आपका आपकी टैक्स रिटर्न से, आपके अकाउंटेंट के लेटर से ये प्रूफ होता है, लेकिन ये सोर्स ऑफ इनकम होता है। लेकिन जो प्रूफ ऑफ इनकम ये है कि वो जो आप क्लेम कर रहे हो इनकम वो आपके बैंक में आ रही है, दोनों चीज़ें कोलैबोरेट कर रही हैं और आपने HMRC को नोटिफाइड कर दिया, अकाउंट्स जमा हो गए और अकाउंटेंट एज ए इंडिपेंडेंट बॉडी इसको कंफर्मेशन कर रहा है, तो इस बात को होम ऑफिस एक्सेप्ट करता है। आपकी कॉल का शुक्रिया, लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो जी मैडम फरमाइए, व्हाट्स योर क्वेश्चन? जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है मेरा फ्रेश क्लेम था राइट, जो कि रिफ्यूज हो गया अनफॉर्चुनेट। और रिफ्यूजल मुझे नहीं मिला, वकील ने मुझे नहीं भेजा। 2 Right. साल बाद मुझे होम ऑफिस ने लेटर भेजा एविक्शन का, तो मैंने कहा आपने मुझे नहीं इन्फॉर्म किया, तो पता चला कि उन्होंने वकील को भेजा था 2 साल पहले और वकील ने मुझे अपडेट नहीं किया। राइट, मैं जो 2 साल का मेरा अरसा गुजरा है, क्या ये इलीगल हो गया? एक क्वेश्चन। राइट। क्वेश्चन ये कि अब इन्होंने मेरा फ्रेश क्लेम भी रिफ्यूज कर दिया और मुझे लिख के भेजा है कि तुम लाइफ भी नहीं डाल सकती क्योंकि तुम्हारा हस्बैंड जो है वो भी नहीं है इस वीजा पे, किसी वीजा पे। Okay. तो मैं अब कौन सा केस डालूं जिसमें सक्सेसफुल चांसेस Okay. हैं? सेकंड आपने मेरा एक है, जब आपने असाइलम क्लेम किया था उससे पहले आपका वीज़ा कौन सा था मैडम? नहीं मेरे पास कोई वीजा नहीं था, मैं तब हस्बैंड के वीजे पे थी, तब उस वक्त हस्बैंड का असाइलम था और उनका भी रिफ्यूज हो गया। तो फिर मेरा कोई उसके और बाद- क्वेश्चन है आपका? दूसरा क्वेश्चन है कि मेरे हस्बैंड का ही 10 ईयर बेस का था जो उन्होंने डाला था लॉन्ग रेजिडेंसी का, तो जज ने एक्सेप्ट किया कि तुम्हारे 10 साल मैं मानता हूँ ये लॉफुल है, कंप्लीट, मुझे इस पे कोई इतराज नहीं है, लेकिन तुम्हारा क्रेडिबिलिटी इशू है। और क्रेडिबिलिटी इशू के ऊपर भी जो पहले कोर्ट था उसने इनको फ्री कर दिया था। Okay. और ये हमने बात कोर्ट में प्रूव भी कर दी। अब फिर भी जज ने ये लिख के थैंक यू। भेजा अब कि मुझे मैं लास्ट क्वेश्चन बता दें कि credibility- आप दोनों का क्लेम इकट्ठा चल रहा है या अलग-अलग चल रहा है? अब मेरा क्लेम चल रहा था सिर्फ असाइलम का। ओके, और अब वो टीवी पे पता आंसर चला सुने कि- मैडम, थैंक यू मच, अप्रिशिएट आपकी कॉल का शुक्रिया। देखिए आपने 3 सवाल पूछे हैं। पहला सवाल आपका ये था कि आपने असाइलम क्लेम किया और रिफ्यूज़ हो गया, आपने फ्रेश क्लेम किया वो आपको मिला नहीं, वकील को मिला, आप लीगल हैं कि नहीं लीगल। पहली बात, अनफॉर्चुनेटली आपके पास पहले भी स्टेटस नहीं था, अब भी स्टेटस नहीं है। अब आपने ये साबित करनी है 2 चीज़ें। नंबर 1 कि आपको 2 साल पहले रिफ्यूज़ल हुआ था, आपको नोटिफाइड नहीं किया, आप उसको बता दें कि मुझे नोटिफाइड नहीं किया। लेकिन जो मैटर ऑफ द फैक्ट हैं वो ये है कि क्या जो रिफ्यूज़ हुआ है उसको जस्टिफिकेशन करने के लिए या उसको चैलेंज करने के लिए आपके पास कोई एविडेंस है? दिस इज़ अ मेन क्वेश्चन। इस बात पे जज मान जाएंगे या होम ऑफिस मान जाएगा कि यस आपको वकील ने नहीं बताया, चलो आपको लेट मिला। लेकिन अब सवाल क्या आता है कि अगर अब आपको मिल गया है, आपके सामने रिफ्यूज़ल लेटर पड़ा है, क्या आप इसको चैलेंज कर सकती हैं या इसके अगेंस्ट अपनी एविडेंस दे सकती हैं? ये फर्स्ट क्वेश्चन होगा। नंबर 2 सवाल पूछा था कि आपके हस्बैंड के 10 साल चल रहे हैं, वो क्रेडिबिलिटी है, ए है, बी है, उनको जो रिफ्यूज़ल लेटर है उसको लेके अगर उसका कोई वकील है उससे मुतमिन तो वेल एंड गुड, अगर वरना सेकंड ओपिनियन के तौर पे आप किसी भी वकील को दिखा लें ताकि आपको पता चल जाएगा। दोनों के आपके क्लेम डिफरेंट हैं, इसलिए दोनों को डिफरेंट ही कंसिडर किया जाएगा। या अगर आपने पहले क्लेम किया हो कि आप हस्बैंड वाइफ हैं, अगर आपके हस्बैंड को वीज़ा मिलेगा तो आपके पास राइट है कि आप उसको ज्वाइन कर सकती हैं। तो मेरे ख्याल में आइडियली, क्योंकि आपके केस काफ़ी कम्प्लेक्स है, अच्छा होगा कि तमाम डॉक्यूमेंट्स लेके किसी वकील के पास जाएं, उसको दिखाएं ताकि आपको अप्रोप्रिएट एडवाइस मिल सके। आपकी कॉल का शुक्रिया, लेते हैं ब्रेक, स्टे विद अस, मिलते हैं वक्फे के।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। लेते हैं कॉल, जी फरमाइए। हेलो। हेलो जी फरमाइए। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, आप लाइव हैं, बोले सवाल क्या आपका जी? जी, मेरे को लिव टू रिमीन है, एक्सटेंशन अप्लाई करनी है, लेकिन मेरी सेविंग अकाउंट में 8,000 पाउंड है। क्या फीस माफ हो सकती है कि नहीं हो सकती? हाँ, थैंक यू आपका। और ये पैसे कहाँ से आए थे आपके पास? ये बेनिफिट के पैसे से जो अकाउंट में से पार्ट टाइम में जॉब कर रहा हूँ। और आपकी फैमिली कितनी है जी? 725 है। नहीं, आपकी फैमिली कितने बच्चे लोग आपके जी फैमिली में? बच्चे हमारे हैं 3 बच्चे हैं, 2 5। तो 5 की एप्लीकेशन करनी है आप लोगों ने? जी आपने 5 लोगों की एप्लीकेशन करनी है? जी जी, 5 लोगों की। देखें, जो ये जो फ़ी वेवर एप्लीकेशन का जो कंसेप्ट है या जिसका जो प्रिंसिपल है वो ये है कि अगर आप अनफॉर्चुनेटली वनरेबल हैं, आपके पास फंड्स नहीं हैं, आप अफोर्ड नहीं करते, एंड ड्यू टू द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन, गवर्नमेंट ने ये कहा है कि अगर आप इस हालात में हैं, दो कि आपके पास लिमिटेड लीव है जिस पे पब्लिक फंड अलाउ नहीं थे, तो हम फिर भी आपकी एप्लीकेशन को कंसिडर करते हैं। अब देखिए, अगर 5 लोगों की एप्लीकेशन है तो मेरे ख्याल में जो फ़ीस बनती है वो समथिंग मोर देन 10,000 पाउंड बनती है। और आप सर्वाइव कैसे करनी है, बाकी चीज़ें, अगर तो ये आप साबित करते हैं कि यही हमारे पास फंड्स हैं, सोर्स ऑफ इनकम कम है और इसको हमने फर्दर जो 6 माह या 5 माह का प्लान किया हुआ कि उसमें हमने अपने बच्चों को खाना खिलाना है, फूड प्रोवाइड करना है, और हमारे पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो बिल्कुल हम सब कंसिडर करेगा। अगर आपके पास रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम और भी आ रहा है और आपके पास 8,000 पाउंड सेविंग पड़ी है, तो फिर तो ऑटोमेटिक गवर्नमेंट बोलेगी कि भाई आपके पास पैसे पड़े हैं, क्यों नहीं पे करते आप हमें। इसलिए अगर कोई ऐसे लोग हों जिनके पास फंड्स ना हों, अगर फंड्स हैं तो उनके पर उसमें कोई स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए हैं, जैसे कि आपने 2 महीने का रेंट देने वाला है वो दे रहे हैं, या अपने फूड के रखे हुए हैं, और आपकी जॉब अनफॉर्चुनेटली आजकल के जो हालात जा रहे हैं ठीक नहीं है, तो ये डिपेंड करता है कि आपके सर्कमस्टांसिस क्या हैं। अगर इसको मैं वेरी मोटी या सम अप करता हूँ इस बात को, तो उसका मतलब ये बनता है कि आपने बताना है कि आपके पास फंड्स हैं, अगर हैं तो वो किस पर्पज़ के लिए पड़े थे, क्या आप होम ऑफिस की फ़ीस पेड कर सकते हो, इन पोजीशन में हैं कि नहीं। अगर पोजीशन में नहीं हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देंगे, आप अपने 6 माह की कम से कम लास्ट बैंक स्टेटमेंट देंगे, और जितने आपके बैंक अकाउंट्स हैं वो सारे आपको होम ऑफिस को डिस्क्लोज़ करने पड़ेंगे। अच्छी बात है, जो मैं हमेशा इनकरेज करता हूँ तमाम दोस्तों को, कि अगर अल्लाह ना करे ऐसे हालात हों तो एप्लीकेशन कर दें, कोई चीज़ हाइड ना करें, मिसलेड नहीं करें। अब उसके बाद डिपेंड करता है कि अगर केस वगैरह आपसे मुतमिन हो जाएगा तो आपको ग्रांट कर देगा, अगर नहीं करेगा तो कोई नुकसान नहीं होने वाला आपका। तो इसलिए मेरी सजेशन होगी आपको कि यस अप्लाई करें, एविडेंस दें, और साथ जो आपने उसकी रीज़न बताएं जो पैसे पड़े हैं, और मेरे ख्याल में अप्लाई करने में हर्ज नहीं है, लेकिन मेक श्योर करें कि तमाम जितने अकाउंट्स आपके या आपके पार्टनर्स के, जो आपकी वाइफ है उसके जितने अकाउंट्स हैं वो लाजमी डिस्क्लोज़ करें, उसका बैलेंस है वो भी बता दें, और उसके बाद लेट देम डिसाइड के व्हाट दे होम ऑफिस कंसिडर करते हैं आपके केस के मैटर को। आपकी कॉल का शुक्रिया। लेते हैं नेक्स्ट कॉल, जी फरमाइए। हेलो हेलो हेलो, आप लाइव हैं, बोले सवाल क्या आपका जी? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। जी वो क्वेश्चन पूछना था मुझे। प्लीज़ बोले सवाल क्या आपका, प्लीज़, टाइम शॉर्ट है प्लीज़। जी क्वेश्चन ये है कि कहते हैं मैंने मेरे फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ पाकिस्तान में है, और वो जो है यहाँ आना चाह रहे हैं, तो ये पूछना था कि कोरोना की वजह से ये यहाँ बंद हो रहा है, तो क्या पाकिस्तान से वो वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं? उन्होंने दिसंबर में आना है। मेरी वाइफ अभी प्रेग्नेंट है, तो वो उसकी केयर के लिए आना है। और तो आपके पास नेशनलिटी क्या है मेरे भाई? जी ब्रिटिश है हम दोनों। ठीक, आपकी कॉल का शुक्रिया। देखिए, कोविड-19 ये कह रहा है कि वो ट्रैवलिंग को उन्होंने कहा है, गवर्नमेंट की पॉलिसी भी ये है, अनाउंसमेंट भी ये कर रहे हैं कि अननेसेसरी ट्रैवल को अवॉइड करें, बल्कि स्टॉप करें, और इस पर थोड़े से वो रिस्ट्रिक्शन भी लेके लाना जा रहे हैं कि ड्यूरिंग द लॉकडाउन सिर्फ जो प्योरली इम्पोर्टेंट ट्रैवलर होंगे वो कर सकेंगे, जो फैमिली विजिट वाले और बाकी जो जस्ट एज ए लग्जरीज वाला मामला था उसको
बड़ा स्ट्रॉन्गली वो कंडेम्ड कर रहे हैं, रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं और उसको स्टॉप कर रहे हैं। अब आपके केस में देखा जाए कि जेन्युइन रीज़न है कि आपकी वाइफ हैं वो एक्सपेक्टेड हैं, बेबी की डिलीवरी है और उसको अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर यहाँ पे नहीं है कोई आपकी अजीज़ ज़्यादा, तो वो आपकी जो मदर इन लॉ हैं वो ड्यूरिंग दिस टाइम आपकी वाइफ को लुक आफ्टर करने के लिए आ रही हैं। अब अगेन एप्लीकेशन कर दें, साथ डॉक्टर का लेटर और जो रिपोर्ट्स हैं वो लगा दें, आपके पास फंड्स हैं प्रूफ दे दें, आपके पास सफिशिएंट अकोमोडेशन है उनको अकोमोडेट करने के लिए वो प्रूफ दे दें, और उनके आने का जो पर्पज़ है वो प्योरली एंड इंटायरली वो ये है कि फैमिली को ड्यूरिंग दिस सिचुएशन आपको सपोर्ट करने के लिए आ रहे हैं दें। ये एक रीज़नेबल या एक आर्गुएबल केस होगा कि उनके आने का कोई मकसद है। दे आर नॉट ओनली जस्ट कम फॉर द विजिट टू द UK, दे जस्ट ओनली कम फॉर द सपोर्ट योर फैमिली। तो मेरे ख्याल में आपको एप्लीकेशन करने में हर्ज नहीं है, एप्लीकेशन करनी चाहिए और साथ बता दें जो आपके रीज़न्स हैं कि अगर आप वो नहीं आते तो क्या आपकी लाइफ पे इम्पैक्ट आएगा। तो मेरे ख्याल में उनको वीज़ा लगने के चांसेस हैं। जेन्युइन विजिट के लिए या कोई पर्पज़ के लिए आ रहे हैं उनको स्टॉप नहीं किया जा रहा ड्यूरिंग इवन द लॉकडाउन। अगर कोई फर्दर कोई कंडीशन या रिस्ट्रिक्शन नहीं आती आज के लॉ के मुताबिक वो लॉ है, आप एप्लीकेशन कर लें और फिर डिपेंड करता है कि उनको अपॉइंटमेंट मिलती है वहाँ पे या उस वक्त जो ब्रिटिश हाई कमीशन होगा क्या वो अंडर एज ए फंक्शनल होगा कि नहीं होगा। बट एनीवे आपको एप्लीकेशन करने में इसमें हर्ज नहीं है, अप्लाई करना चाहिए। आपकी कॉल का शुक्रिया। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो सर, आप टीवी को म्यूट कर लें और फ़ोन पे बात करें। सवाल क्या आपका जी? सवाल मेरा ये है कि हमने अपने लड़के की शादी इंडिया में की थी, राइट, मैरिज वहाँ से करके की थी, अब वो यहाँ पर आई है। राइट, लड़का हमारा डिसेबल है, इस बेस पर आई थी। राइट, तो उसको लड़की को जो पासपोर्ट मिला है, वीजा मिला है, वो 3 साल के वर्क परमिट पर मिला, वर्क परमिट पर मिला है। तो वो जो है अब अप्लाई उसने करना हो इंडेफिनिट स्टे के लिए, तो वो क्या को चाहिए, क्या जरूरत थी? सॉरी, कौन यहाँ पे कौन रहता था? ब्रिटिश नेशनल कौन है उन दोनों में से? बेटा आपका? हमारा लड़का है, इसका शादी करके लाए थे लड़की को वहाँ से इंडिया। और अनफॉर्चुनेट डिसेबल है वो बेटा आपका? लड़की को जो वहाँ से वीजा मिला है वो वर्क परमिट मिला 3 साल का। ओके, वो यहाँ आई है तो अब उसको 2.5 साल के बाद का अप्लाई करना पड़ेगा इंडेफिनिट के लिए। ओके, अब टीवी पे आंसर सुने मेरे भाई। हाँ ओके, मैंने आपका सवाल सुन लिया, अब टीवी पे आंसर सुने प्लीज़। 2 चीज़ें हैं जो आपके सवाल से मुझे क्लैरिटी नहीं मिली, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि दोनों सिनेरियो में आपको आंसर कर दूँ। आपने ये कहा कि अनफॉर्चुनेटली आपका बेटा डिसेबल है लेकिन उसकी नेशनैलिटी ब्रिटिश है, वो अपनी वाइफ को यहाँ पे लेके आया है। अब उसने 2-2.5 साल या 3 साल गुजार लिए, अब उसने एक्सटेंशन अप्लाई करनी है या इंडेफिनिट अप्लाई करना है। पहली बात तो ये है कि अगर तो जो बच्ची आई है, जो आपकी डॉटर इन लॉ आई है, वो आपके बेटे की अगर डिपेंडेंट आई है तो वो फिर वर्क परमिट पे नहीं आई, वो एज ए स्पाउस वीज़े पे आई है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको इनकम नहीं दिखानी पड़ी। इनकम के 3 रसूल होते हैं, ईदर यू आर द एम्प्लॉई और सेकंड आपके पास यस एम्प्लॉय या सेल्फ एम्प्लॉय और मीट द क्राइटेरिया ऑफ द 18,600 और सेकंड ये ऑप्शन होता है फार्मूला कि अगर आपके पास इनकम नहीं है तो आपके पास सेविंग है विच इज़ 62,500 फॉर द 6 मंथ। और थर्ड, अगर अनफॉर्चुनेटली जो ब्रिटिश पर्सन है अगर वो डिसेबल हो तो वो दोनों कैटेगरी से एग्जेम्प्ट होता है, वो बगैर अपनी इनकम के अपने पार्टनर को ड्यू टू द डिसेबल इश्यूज़ वो यहाँ पे ला सकता है। अगर तो ये केस था आपका कि आपने इनकम नहीं दिखाई, डिसेबल होने की वजह से उसकी वाइफ को वीज़ा मिल गया और उसको एज ए स्पाउस वीज़ा मिला है, वो 33 मंथ का होगा और अब उसकी एक्सटेंशन है, तो ऑफ कोर्स सेम ही डॉक्यूमेंट्स आप अप्लाई करोगे कि 2 साल से इकट्ठे रह रहे हैं, 2.5 साल से, वो भी उनका रिलेशनशिप है और प्रूफ के वो इकट्ठे रह रहे हैं। अगर इनकम नहीं भी होगी तो स्टिल अंडर द डिसेबिलिटी अलाउंसेस के तहत उसको यहाँ पे एक्सटेंशन मिल जाएगी।
और अगर वह उसको एज ए स्पाउस 5 साल हो गए हैं तो फिर वो इंडेफिनिट अप्लाई कर सकती है। लेकिन शर्तें सिर्फ 2 हैं। अगर एक्सटेंशन है तो उसको पहले A1 किया था, अब A2 करना पड़ेगा। अगर इंडेफिनिट है तो उसको लाइफ इन यूके और B1 एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा। ये तो सिनेरियो ए है जो आपने कहा कि वो स्पाउस वीज़े पे आई तो, और आपने बातों में ये कहा कि शायद वो वर्क परमिट पे आई हैं। अगर आपके जो लड़की है वो सिर्फ अपने ओन वर्क परमिट पे यूके पे आई है तो फिर उसके पास अपना राइट है कि अगर वो 3 साल का वीज़ा मिला था, अब उसकी एक्सटेंशन 2 साल की लेगी, 5 साल पूरे करते हुए अंडर द Tier 2 जर्नल वो इंडेफिनिट अप्लाई कर सकती है। अब ये देख लें ए कि क्या उसकी एक्सटेंशन है, बी क्या उसका इंडेफिनिट एज ए स्पाउस है, सी क्या वो वर्क परमिट पे आई है तो उसने कैसे जाना है। तो ये मैं तीनों जो मेरे ख्याल में लगा कि आपके सवाल से मैंने तीनों ही ऑप्शन पे आपको एडवाइस कर दिया। होप कि आप अंडरस्टैंड किया होगा। आपकी कॉल का शुक्रिया। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए सर। हेलो मैडम फरमाइए, व्हाट्स योर क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम, क्या मैं स्टूडियो में बात कर रही हूँ? जी प्लीज़, आप लाइव हैं, बोले सवाल क्या आपका। जी अच्छा जी, मेरा एक क्वेश्चन है मेरे हस्बैंड के लिए। तो मेरे हस्बैंड ने उसके आइलर उसको मिल गया, तो उसके 1 साल बाद हम लोगों ने उसके नेचुरलाइजेशन के लिए अप्लाई किया। बट आइलर से पहले उसको एक डिस्क्रिशनरी लीव था उसका, उधर एक मिसअंडरस्टैंडिंग था, वीजा का कुछ मसला था। तो बट उन लोगों ने असेसमेंट के बाद उसको आइलर दे दिया। बट कुछ दिन पहले हम लोगों ने वो नेचुरलाइजेशन का वो सवाल डिसीजन पूछिए, आया, उन सवाल लोगों क्या है ने जी उसको आपके मैडम, रिफ्यूज सवाल क्या किया, आपका। हाँ ये बोल के कि बिफोर डिस्क्रिशनरी लीव था 2.5 साल का, तो वो बोल रहे कि ये आपको 10 साल पूरा करना है अकॉर्डिंग टू द लॉ। बट उन लोगों ने आईएलआर का कुछ मेंशन ही नहीं किया। तो ये क्या आपकी पॉसिबल कॉल है का कि शुक्रिया मैडम, आपका सवाल बड़ा लंबा किए जा रही है, टाइम शॉर्ट है, प्लीज़ आप टीवी पे आंसर सुने। आपकी जो सवाल से मुझे अंडरस्टैंडिंग हुआ है कि आपके हस्बैंड को इंडेफिनिट मिल गया, लेकिन जब आपने नेशनलिटी अप्लाई की तो होम ऑफिस ने आपको रिफ्यूज़ कर दिया, ये कहते हुए कि इंडेफिनिट से पहले या अपने 5 साल पहले आप डिस्कशन लीव पे थे, या उससे पहले आप इलीगल थे, या कुछ और था, या ओवरस्टे थे। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग करनी बहुत ज़रूरी है सबके लिए कि इंडेफिनिट मिलता है कि आप किस कैटेगरी से आपको इंडेफिनिट मिल रहा है। लेट्स से अगर किसी बंदे ने असाइलम क्लेम किया, 5 साल रिफ्यूजी रहा, उसको 5 साल के बाद इंडेफिनिट मिल जाता है, लेकिन वो 1 साल के बाद नेशनलिटी अप्लाई नहीं कर सकता। अब जो 12 जुलाई 2012 से जो लॉ बना है 2012 से, ये क्लियर है कि आपने जब भी नेशनलिटी अप्लाई करनी है तो अगर आप यहाँ पे यूके के अंदर 10 ईयर्स से रह रहे हैं या मोर देन 10 ईयर्स, तो आपके लास्ट 10 ईयर्स शुड बी लीगल इन द यूके विदाउट एनी लीव टू रिमेन, विदाउट एनी वैलिड वीज़ा, or even all the application should be made within a authorized time or prior to expire the leave. ये सारी conditions हैं for the principle of the long residency. ये कहा जा इंडेफिनिट मिलना एक डिफरेंट सिनेरियो, लेकिन इंडेफिनिट के बाद ये राइट नहीं है कि आपको 1 साल के बाद नेशनलिटी अप्लाई कर दोगे। वो डिफरेंट कैटेगरीज होती है कि अगर 5 साल इकट्ठे आप रहे हो वर्क परमिट के ऊपर या किसी और कैटेगरी के। लेकिन आप चेक कर लें, अगर तो आपके हस्बैंड हमेशा 10 साल लीगल रहे थे तो फिर उनका राइट बनता है चैलेंज करें। अगर 10 साल लास्ट वो लीगल नहीं रहे थे, इंडेफिनिट के 1 साल के बाद वो ऑटोमेटिकली क्वालिफाइड नहीं करते। आपकी कॉल का शुक्रिया नाज़रीन। टाइम मेरा और आपका साथ यहाँ तक। जिन्होंने कॉल किया सलाम उनका शुक्रिया, जो हमें सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं उनका भी शुक्रिया। लेकिन मेन चीज़ें ये हैं कि ड्यूरिंग द ये लॉकडाउन जिनका वीज़ा एक्सपायर हो रहा है बाय 30 नवंबर, अगर वो ऑनलाइन एप्लीकेशन कर दें, एविडेंस दे दें, तो उनको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। रिगार्डलेस वो यहाँ पे विजिटर हैं, स्टूडेंट हैं, स्पाउस वीज़े पे हैं, तो ये एक ग्रेस टाइम दिया गया है ड्यूरिंग द लॉकडाउन टाइम, तो इसलिए आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं। मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।